I feel like especially with आजकल की social media and age and with जो हम गुजर रहे हैं, आप डबल चेक नहीं करते. Journalism that I see of, especially I think we're very influenced by the Indian journalism a lot. वो कुछ भी लगा देते हैं कोई वेरिफिकेशन के बगैर और लोग बिलीव कर लेते हैं. तो आई थिंक हमारे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ये करना चाह रहे हैं. सेन जर्नलिज्म बहुत कम है. बट या आई फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे हाउ आई टेक इट इज बाय नॉट टेकिंग इट सीरियसली. क्या हो जाएगा ज्यादा कुछ नहीं होगा. नहीं, कुछ नहीं होगा. वही बात है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में सिक्योर हैं और आपको पता है कि ये एक दुनिया है जो लोगों ने बनाई है और उसमें वो फैंटेसाइज कर रहे हैं कि ये दो लोग इकट्ठे हैं. ठीक है. I always feel like and that's something that I decided from day one entering this industry, and that's something my father taught me, was always keep your personal life personal. And when I say personal life personal, I don't mean कि you have to keep it secretive or छुप के कुछ. But एक होता है secret रखना, एक होता है private रखना. There's a difference in that. And that's how I've always try to take my life ahead, especially with this career that I am in right now, that I feel like my personal life and my private affairs or whatever I do, my business is going to stay my business as long as I let it be my business. If I put it out there, obviously people will talk. Obviously, and I don't question that idea of people talking about you, of people making rumors about you, because that's part and parcel of the field we are in. So I just take it very lightly into this, that it's still my private life and you only know what I have told you. And you don't know what so you can conjure up any thought. No, I love that. I love what you're saying about secretive or private mein farak hai. Bilkul sahi. And whatever you put out is open to conversation. And it should be. And you should not question. कि मैं ये बात हमेशा लोगों को भी कहती हूँ कि अगर आपने कोई चीज या बात पब्लिकली लगाई है और उसके बारे में बात हो रही है, तो आप क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं इस चीज को? या तो आप उस चीज को इतना प्राइवेट रखेंगे किसी को कुछ ना पता हो. लेकिन अगर आपने पब्लिकली लगा दी है, पोस्ट लगा दी है, कुछ कर दी है, लोगों को हिंट्स दे रहे हैं आप, तो फिर जस्ट let it be. Do you think artists today and stars especially are under a lot of pressure कि लगाएं कुछ ना कुछ, बताएं, अच्छा मंगनी हुई है क्यों नहीं बताएं, या इवन खुदा ना करे जब डिवोर्सेस होती हैं बताएं, इन्फॉर्म करें, बताएं, या कुछ अगर होता है कमेंट करें, अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन दें, आपने ये क्यों नहीं पोस्ट किया. Do you feel that वो भी तो आजकल बहुत है. 100%, I agree. And this just started, I feel, 5-6 years ago. It wasn't that the pressure was not very evident before that, I feel. But ये सब के बावजूद, I feel like it's who you are as a person that will always reflect upon your Instagram also. And that's how it should be. सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की सबसे ज्यादा बात हो रही है ना. तो आप जो इंसान हैं, अगर आप वही रिफ्लेक्ट करें उस पे, तो बेहतरीन है. मैं हमेशा ये कहती हूँ, when you meet someone in person, it should literally be reflective of who they are on Instagram. Otherwise, they're literally faking it, and आपको पता चल जाता है. और बहुत आसान है पता करना. मतलब आप 1-2 मीटिंग्स करें किसी से और फिर आपको भाई पता चल जाता क्या हो रहा है क्या नहीं. तो बहुत स्क्रूटनी है. और इस चीज का मुझे ये लगता है, how I handle it is that I am very private with also posting about it. So I like posting my vacation pictures, or like posting one day or two क्या हो रहा है क्या नहीं. बट मैं उस मोमेंट को हमेशा पहले एंजॉय करती हूँ. मेरा पर्पस ये नहीं होता कि मैंने आज तस्वीरें लेनी है, बल्कि कल ही ये बात सोच रही थी मैं बताती हूँ कि रोशन called me and Roshan went like, listen, you're not posting for 20 days. People are meeting me in places and questioning me, where is she, गायब क्या हो गया, सब ठीक तो है. And like the idea that, and I understand कि हमारे मुल्क हालात कैसे हैं कि लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया अगर पोस्ट नहीं कर रहे. But the idea is that there is a pressure that you have to constantly post and be updated. And I'm not quite well synced with that. Because मैंने हमेशा उस moment को enjoy किया और मैंने कभी नहीं सोचा कि वो ये तस्वीरें अच्छी आनी चाहिए.
हाँ मेरे दोस्तों को अब पता चल गया है, तो वो रैंडमली मेरी तस्वीरें ले लेते हैं और मैं लगा लेती हूँ। लेकिन रोम की तस्वीरें बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ है है ना? ना? उफ, वो so मेरी good. वो मेरी एक हाँ। वो दोस्त है जिसको तस्वीरें लेना बिल्कुल नहीं आती, बट अच्छा नहीं आती? उसने मैंने कहा बहुत उसको अच्छी आती है, हर जगह उसको साथ ले जाना चाहिए। उसने बहुत अच्छी ली। आई वाज शॉक्ड आफ्टर दैट बिकॉज व्हेन आई वाज गोइंग आई वाज लाइक लिसन, इस ट्रिप पे पिक्चर्स तो नहीं आने वाली और कोई वो सीन ही नहीं है, बिकॉज मैं कभी अपनी तस्वीरें नहीं लेती। मेरी बहन ने मुझे एक स्टिक ऑन चीजें दी हुई है, वो मैं किसी चीज पे लगा लेती हूँ और यू नो एक वीडियो रिकॉर्ड करके मामा को या किसी को बाबा को अपडेट कर देती हूँ, बट मुझे शौक नहीं है ज्यादा तस्वीरें लेने का। मेरी कोई ले तो ठीक है और मैं लगा देती हूँ, या कोई पेड शूट हो तो वो मैं लगा देती हूँ, बट इट विल नेवर बी लाइक आई लाइक ओ कम ऑन आज तस्वीरें लेते हैं। आई विल नेवर वेक अप एंड बी लाइक आज का दिन हमने तस्वीरें आज हमने कंटेंट बनाना है। हाँ नहीं, मुझसे नहीं होता और ये बड़ी हिम्मत है उनकी जिनसे होता है, बट मैं मेरा कंटेंट नेचुरली आ जाए और वो लग जाए। हाँ ठीक है ठीक है, that's how absolutely absolutely I feel. Going back to Ishq Murshid for a moment, हमने obviously बहुत intensity के साथ रिव्यू किया हर एपिसोड का, हर सीन, ये वो, enjoyed it incredibly. I mean कहीं कहीं लेकिन जो स्क्रिप्ट थी और प्लॉट था वो स्कैटर होना शुरू हो गया था with time. And of course हमारी बात ना हुई ना, you didn't give any interviews, neither did Bilal, so we couldn't really know what was happening. But थोड़ा सा लग रहा था जैसे कि चॉपी हो गया है, तो क्या बदला गया था स्क्रिप्ट, या was it the same script that you started with, या वो एक इश्क मुर्शिद की दुनिया का जादू बन गया था जिसमें सब खो गए? एक सवाल, you think about it. और दूसरा ये कि जो मैंने और हसन ने बहुत कहा कि जो शिब्रा का कैरेक्टर था, जो बड़ा पहले सीन में था कि मैं जो ना मैं सच्चाई का और मैं हर चीज़ प्रॉपर, झूठ से नफरत एंड यू नो वेरी राइचियस एंड एवरीथिंग, और ये लड़का उससे झूठ बोलता रहा है पूरी जिंदगी. Was that a forgivable thing for her? And you know, I always wanted to know what your thoughts were about this. So पहली बात, answering your first question, that I can sit here and talk about things because obviously I have a lot of insight. I was part of it, but I would choose not to for reasons like I feel like behind the scenes बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे नहीं लगता आपको publicly बतानी चाहिए और कहनी चाहिए. इश्क मुर्शिद जो भी बना, जितना ग्लोबल सेंसेशन बना, उसका अगर क्रेडिट किसी को जाना चाहिए तो वो दादा को जाना चाहिए. आई वुड ऑलवेज से दैट. स्क्रिप्ट में ऑल्टरेशन हुई नहीं हुई, उस टाइम के लिए मैं ये बता सकती हूँ कि बेहतरी के लिए की गई थी. वो ट्रांसलेट कैसे हुई, यू नो, दैट्स अनफॉर्चुनेट. बट मूविंग टू द कंक्लूजन दैट आई फील लाइक इश्क मुर्शिद में जब कोई चेंजेस हुई या स्क्रिप्ट की चेंजेस हुई या अडेप्शन कोई भी दादा ने डाली, वो सोल पर्पस था कि दादा का विजन क्या था. बिकॉज आई ऑलवेज से कि एक ड्रामा डायरेक्टर विजन होता है. आप एक स्क्रिप्ट 4 डायरेक्टर्स को दें, वो डिफरेंट तरीके से नरेट करेंगे. सो दिस वाज दादाज वर्ल्ड. इट वाज दादाज वर्ल्ड. जैसे भी था वो उनका दुनिया थी और उनको बहुत पसंद थी और उन्होंने वैसे ही हमें प्ले करने को कहा जैसे उनको वो चाहते थे और हमने भी वही किया. जहाँ तक बात शिब्रा के किरदार की है, तो ये बात मैंने भी सोची और फिर मुझे अब ये इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है. और तब तो मुझे दादा ने यही कहा था दैट आई फील लाइक प्यार में ना, और ये एक इंटेंस प्यार की कहानी है, बहुत सख्त प्यार में बड़ी से बड़ी इंटेलिजेंट, बड़ी से बड़ी आई फील आउटस्पोकन लड़की पागल हो जाती है और बिल्कुल दिमाग सठा जाता है उसका. सो आई फील लाइक हम बहुत ओवर कैलकुलेट करते हैं कहानियों को. इट वाज अ सिंपल स्टोरी वेयर अ गर्ल एक्चुअली फेल इन लव फॉर अ बॉय. उसके बाद आप भूल जाते हैं ये चीजें, और शायद यही हमारा ह्यूमन नेचर भी है. आप अगर जनरली भी 4-5 लड़कियों की कहानी उठा के देखें तो होना नहीं चाहिए ऐसे. ऑब्वियसली आई थिंक आपको अपने ग्राउंड्स पे रहना चाहिए, बट प्यार एक ऐसा इमोशन है कि कहाँ रहते हैं आप अपने ग्राउंड्स में. सो वही वो एक इतनी नेचुरल कहानी थी, वो इतना स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशन था उस कहानी में कि हमने उसको ऐसे ही लेके चले कि अब वो नाराजगी आई थी उसके कैरेक्टर में, बहुत टाइम पे आई थी जब वो बात का हुआ ये आया, बट एट द एंड ऑफ द डे शी वाज मैडली इन लव विद दैट गाय. एंड that's the story of mad love with Fazal Baksh. With Fazal Baksh. With the Fazal Baksh.